It's on. It's on. Okay. Chalo. See what we are studying here. If there is a hole or opening at a certain height, which is given by small h. So we studied the velocity of efflux. इसका formula हमने देखा था कल. Velocity of efflux. इसका formula was given by root 2gh, where h is the depth from the surface of water, right? Okay. So यहाँ से अभी हम क्या करना है कि यहाँ से the stream of water which will come out, right? The stream of water which will come out and fall somewhere, right? We are interested in finding out the range of this stream. So how far ahead this will hit the ground. Okay, and you guys understand that this height matters, right? This range is kind of decided by the fact that because this velocity will decide where it falls, right? So in a way, this height matters in this range. We are interested in finding out this range in terms of the height and the total depth of the vessel. ठीक है, this is the objective. So standard set of questions है, इस पे आते हैं. तो क्या करेंगे, देखो velocity तो हमको मालूम, यहाँ से जो particle निकल रहा है, ठीक है, water particle is coming out. We know the velocity is this, and this velocity initially will be in horizontal direction, right? बाद में ये थोड़ा सा ऐसे bend होगा, right? But वो तो बाद में होगा ना. स्टार्टिंग में तो ये एकदम जस्ट जब कम आउट हो जाएगा, जस्ट इंजेक्शन हो रहा है, तब तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है. तो अभी अगर कोई मुझे ये बता दे कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू फॉल डाउन, अगर ये जो टाइम निकल जाए मेरे को, सॉरी ये टाइम अगर मैं निकाल पाऊं कैसे, तो कि यहां से नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा. सो हम क्या कर सकते हैं, रेंज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वेलोसिटी को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन once it comes out from this liquid there is no acceleration, there is no force in the horizontal direction, so it will march ahead with the constant speed. If someone tells us the time कैसे निकालेंगे यार, देखो सीधी सी बात है, how much height it has to fall, capital H minus small h. You guys agree, right? We are considering an ideal case, it's a free fall. There is no air drag, air friction, anything. So it's a free fall, guys. So इस height से अगर यहाँ तक कोई particle गिरेगा तो उसका time निकालने के लिए can we use equation of motion, right? So equation of motion हम use कर लेते हैं, हमें चाहिए time. So we can use h minus h is equal to ut plus half gt square. U will be 0 क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी वाज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, सो u इज 0, सो दिस विल गो ऑफ, दिस इज हाफ gt स्क्वायर एंड दिस इज रादर h माइनस h. ओके, सो यहां से आपका टाइम आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 times h minus h upon g. This is the time. This is the time it will take to reach the ground. This is what you wanted. You multiply it with velocity and you'll get your range. तो यहाँ से I'm utilizing this space, guys. I hope you don't mind. ठीक है? Okay. So I'm just multiplying. I'm finding out range. So range हमारी हो जाएगी very simple. V is root 2g small h
and this gets multiplied by the time. So this, we are heading towards a new formula. You guys might have guessed by now, right? So यहाँ से square root of g gets cancelled. If you see this square root 2 becomes 2 outside, and square root के अंदर बचेगा h minus h. This is the formula of range of water streaming out from a filled tank at a depth h below. ठीक है, अब इस पे कुछ चीजें हैं, ये चीज मैक्सिमम कब होगी वो सब वगैरह वगैरह, राइट? सो विल जस्ट स्टडी दैट. सो ये फॉर्मूला याद रखिए, इसको स्ट्रेट आप अप्लाई कर सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको. बस ध्यान रखना प्रॉब्लम में सब जगह ना ऐसे लिखेंगे, वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम ए लार्ज टैंक थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग. सो ये ना, ये वर्ड्स आपके लिए हिंट है कि हमने कल जो फॉर्मूला में अप्रॉक्सीमेशन किया था a2 by a1 को लेस देन 1 किया था, राइट? तो ये हमेशा रहेगा, ये लार्ज टैंक, ये एरिया बहुत लार्ज रहेगा और उसके कंपैरिजन में ये जो होल रहेगा ये वो बहुत छोटा रहेगा. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में इसका मतलब यही है कि आपको बोल रहा है कि भाई ये अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला यूज करो, और कोई मतलब नहीं. वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम ए लार्ज सरफेस एरिया टैंक फ्रॉम ए स्मॉल ओपनिंग, या फिर बोल देंगे एरिया ऑफ द टैंक इज 20 मीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द ओपनिंग इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कहा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतू सा कहा 20 मीटर स्क्वायर, राइट? तो दैट इज अ हिंट. तो ये फॉर्मूला लेकिन आप यूज कर सकते हो स्ट्रेट, 2 times h कैपिटल H माइनस स्मॉल h. नाउ इसको मैक्सिमम करना, मतलब मैं कहां पे होल करूं कि मुझे मैक्सिमम रेंज मिले. ठीक है, तो जरा इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखते हैं. रेंज का फॉर्मूला हमारे पास जो है, दिस इज 2 times स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल h माइनस h, राइट गाइस? आई एम ट्राइंग टू अवॉइड सम कैलकुलस, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड सम dr by dh करना, उसको जीरो करना, वो आप सीखोगे 12th में. मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूं. 2 तो कांस्टेंट है. जरा ये नंबर्स को देखो, दिस इज h एंड h माइनस h. h और h माइनस h इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, डू यू गाइस अग्री कि जितना h बढ़ेगा h माइनस h उतना कम होता जाएगा? ये मतलब ये अगर होल जितनी नीचे लेके आओगे तो उतना ही ये तो बढ़ता जाएगा बट ये कम होता जाएगा, राइट? टोटल आपके पास h ही मिलने वाला है, टोटल h मिलने वाला है. तो गाइज आपने शायद ये पजल करी होगी, अगर मेरे पास एक नंबर है मान लो 10, इसको मुझे स्प्लिट करना है ऐसे 2 नंबर्स में जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम है. फॉर एग्जांपल आई कैन डू 8 and 2, आई कैन स्प्लिट 10 and 8 and 2, you'll get 16. बट वुड दैट बी द मैक्सिमम? नो. आप 3 और 7 कर लो, you'll get 21. The fact is you will get when you split it in an equal half, 5 and 5. Any number, if you want to split and you want to get the product maximum of those splits, you have to split it in equal halves. अब ट्राई करके देख लो. ठीक है, वैसे 18 है, 9 into 9 81, बाकी आप कैसे भी कर लो. 10 into 8 80 आएगा, एक कम हो गया, ऐसे कम होता जाएगा. सो अभी अगर मुझे इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, दिस कैपिटल H इज फिक्स, दिस इज अ टोटल, उसी में से एक पार्ट h माइनस h है और एक पार्ट स्मॉल h है, राइट? सो टोटल कैपिटल H में से आई एम हैविंग 2 parts. सो व्हेन दिस विल मैक्सिमम, व्हेन h इज exactly h by 2, when this hole is kept right in the middle of the tank, right in the middle of the tank, you will get the maximum range. So उस टाइम पे रेंज क्या आएगी? सो यहां पे मैं लिख देता हूं, फॉर maximum R, h will be capital H by 2. So this will be rather h 2 times square root, ये मैं लिख रहा हूं h by 2, और ये भी हो जाएगा h by 2, है ना? तो ये जाएगा 2 से 2 कैंसिल होके, you will only get h, because this 2 and 2 will give you 2, which will knock off this 2, and h square. So this is a maximum range you can achieve. Maximum range you can achieve from a tank. ठीक है? अब इसका एक और एस्पेक्ट है, बहुत द फेमस क्वेश्चन टाइप बोल सकते हो.
अब अगर आप यहां पे आपने यहां पे होल किया ऊपर से h डेप्थ पे, अगर आप कुछ उल्टा करते हैं, अगर आप होल अभी यहां पे कर दे नीचे से सेम हाइट पे, मतलब h हाइट पे, सो एक आपने यहां से ऊपर से h हाइट पे किया, आपके फ्रेंड ने नीचे से h हाइट पे किया, you both will get the same range, right? You guys agree? क्योंकि रेंज में इधर क्या हो जाएगा, h इंटू एच माइनस एच है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसका और ये जो है, ये दो जो डेप्थ है इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो एक केस में आप ये इंटू ये कर रहे हो, दूसरे केस में आप ये इंटू ये कर रहे हो, सिंस दिस इज सेम, द डिफरेंस वुड बी सेम. सो इफ टू होल्स आर मेड, right, one at a certain depth from top and the other one at the same height from the bottom, right, you will get the same range. इस पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, अगर कोई कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हो. ठीक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे. if two openings one small h below the surface and other small h above from bottom of the tank. क्या बोल रहे हैं, then range will be same. ठीक है. अब टिपिकली इसके सारे क्वेश्चंस में ना आपको जो फॉर्मूला है वो यही लगाना है, या तो वेलोसिटी के लिए पूछेंगे स्क्वायर रूट 2gh, या फिर वो रेंज के लिए पूछेंगे तो रेंज के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, दैट्स इट. ठीक है. और अगर कोई वेरिएशन हुआ, मतलब वो ऐसा कुछ बोल दे कि जो ओपनिंग है उसके साइड पे प्रेशर इज समथिंग डिफरेंट. देखो यहाँ पे जो ओपनिंग है और जो ये ओपनिंग है, एक बड़ा एजम्पशन हमने ये लिया है कि ओपनिंग के बाहर भी एटमॉस्फेयर है, विच इज नॉर्मली द केस, एटमॉस्फेयर ही होता है बाहर, राइट. इधर ऊपर भी एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे हमने प्रेशर सेम लिया था, यहाँ पे P0 लिया था, यहाँ पे भी P0 लिया था, इफ यू गाइस रिमेंबर. अगर वो प्रॉब्लम में थ्योरेटिकल ट्विस्ट डाले कि बोले यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बट जो ओपनिंग है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2P0 है, यहाँ P0 है, यहाँ 2P0 है, तब ये सारे फॉर्मूले आपके हो जाएंगे बेकार, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले स्टैंडर्ड केस में. उस केस में यू हैव टू फॉल बैक टू योर बेस्ट फ्रेंड या बर्नौली इक्वेशन, कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप बर्नौली लगाओ. यहाँ पे लिखोगे आप जैसे कि P0 ये एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो ये P0 इस पे प्रेशर है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी अगर हम V1 लेते हैं, प्लस रो GH, दिस इज द हाइट डेप्थ, राइट. ये आपने लगाया, इसको इक्वल किया 2P0, इधर जो प्रेशर है वो 2P0 है, हाफ रो V2 स्क्वायर, ये वेलोसिटी हो गई, और रो GH इसमें नहीं होगा बिकॉज आप ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, राइट, मैंने बताया था. इस वाले में रो GH आएगा, इस वाले में नहीं आएगा. तो अब जो P0 की वैल्यू आपको देंगे वो सबको एडजस्ट करके आपको V1 V2 कैलकुलेट करना होगा. सो डू नॉट ब्लाइंडली अप्लाई दिस फॉर्मूला. अगर देखना कि कुछ वेरिएशन है, दे विल टेल यू. अगर कोई वेरिएशन नहीं बोल रहे हैं तो दिस इज अ यूजुअल केस, फिर अलग से नहीं बताएंगे, लेकिन जब अनयूजुअल केस होगा तो आपको बताएंगे. ठीक है. बियॉन्ड दैट देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. सो we can check few problems just to make our understanding little oh my god. देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7 पेज 401 पे, अभी आप लोग स्ट्रेट आंसर कर दोगे. क्वेश्चन नंबर 7 पेज 401, पेज चेक पॉइंट 2
चेक पॉइंट 2 मैंने पेज 401 बोला ना डियर. You don't even have to calculate, right? It's gonna be D, right? Because it is saying they are meeting at the same point at the ground. That means range is same. So same range means one is, if one is 3 below, other one would be 3 above the bottom. Okay. और देखो एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं. This applies even if this wall is on this side. हाँ, only depth is important. Depth और this height is important. किस साइड पे होल है doesn't matter. देखो अभी क्वेश्चन नंबर चलो कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं. इसमें चेक पॉइंट में कुछ मजेदार क्वेश्चन है नहीं. PYQ में देखते हैं कुछ अगर मिल जाता है. अच्छा पेज नंबर 433 पे आओ आप लोग. पेज 433 इसमें क्वेश्चन 13 देखो. क्वेश्चन 13. See if you guys want to attempt this. 13 131 लिखा है मैंने. Try to apply this concept. इसमें दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं आपको. पहला तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाना है. पहला कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. और उसके बाद आपको लगाना है वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स. इन दोनों से आपका मामला बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्यों अप्लाई कर सकते हैं? वो बोल रहे हैं कि द हाइट इज स्टेडी, तो वाटर द कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है. इसका मतलब जितना रेट ऑफ फ्लो आउटसाइड है उतना रेट ऑफ फ्लो इनसाइड है. इस तरीके से है, आप समझो ना, इस तरीके से है. ये अपना टैंक है, ठीक है, ये अपना टैंक है. इस पे किसी दूसरे सोर्स से water is coming, ठीक है, into this, and then water is also going out, and this height is steady. कोई हाइट है वो स्टेडी हाइट है. इसका मतलब यही हुआ ना कि जिस रेट से वॉल्यूम आ रहा है उसी रेट से बाहर निकल रहा है. तो वी कैन इन अ वे वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. A1 B1 इज इक्वल टू A2 V2. तो यहां का A1 B1 रेट ऑफ फ्लो इन, दिस विल बी इक्वल टू A2 V2 आउट. एक चीज तो ये, और दूसरा कि वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स, यहां से जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. देखो इससे आप लोग का आंसर आता है क्या? कोशिश करिए आप लोग. तो वैल्यूज दिए हुए हैं उसमें. अच्छा, वो ऊपर वाला आपको डायरेक्टली A1 B1 का पूरा वैल्यू दिया हुआ है. दिस प्रोडक्ट इटसेल्फ इज गिवन टू यू एज 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड. मैंने बताया था A इंटू V क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो विच इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड. सो मीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब दे हैव गिवन यू द कंप्लीट वैल्यू ऑफ AB दैट यू कैन इक्वेट टू दिस A2 V2.
चलो कर लेते हैं। तो पहले हम a1 v1 इक्वल टू a2 v2 कर रहे हैं। दिस इज गिवन एज 10 टू द पावर 4। दिस कंप्लीट वैल्यू इज गिवन एज 10 टू द पावर 4 गाइस, ठीक है। एंड व्हाट इज a2? 1 centimeter square, so that will be -4 into v2. So v2 अपना आ गया 1 meter per second. This is this velocity v2, and as per the velocity of efflux, this should be what? √2gh. So this will be v2 is equal to √2gh. So 1 is equal to √2 into 10 into h. So 1 क्या आ जाएगा? 20h. So h will be 1 by 20 मतलब 0.5 मीटर। हाँ, तो मतलब हमने ये 9.8 का थोड़ा सा कुछ शायद किया, उसकी वजह से हुआ है। तो इसको अगर हम देखें तो दिस विल बी 5 सेंटीमीटर ना, अच्छा सॉरी 0.05 आएगा। 1 by 20 0.05, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर गाइस। तो आंसर बी होगा 5.1, बिकॉज आई हैव टेकन GS10, दे माइट हैव टेकन 9.8, तो थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, डजंट मैटर, ठीक है। सो इसी तरीके के क्वेश्चंस इसमें आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। कितने आपके पास टूल्स हैं? हाउ मेनी टूल्स वी हैव? वी हैव first tool is a1 v1 is equal to a2 v2. Second tool is apply Bernoulli. Third tool is v is equal efflux, velocity of efflux, ठीक है। यही दो चीजें हैं, बस इन तीन से अपना काम बन जाता है। और कोई अगर हाइड्रोस्टैटिक केसेस में मिक्स किया हो जाएगा तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एच रो जी, ये वेंचुरी मीटर का है। ये टोटल यही चार जो चीजें हैं, इससे हमारा काम सारे न्यूमेरिकल्स में हो जाता है, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलो अब ना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इट्स कॉल्ड विस्कोसिटी। So till now we have been talking about ideal fluids. Ideal fluids मतलब the fluids which do not have any friction between the internal layers, which is not true. When a fluid flows, आप ऐसे सोचो कि whenever there is a fluid flowing, है ना, there will be some friction between the layers. मतलब I can imagine these as layers of fluid, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आई कैन इमेजिन दीज एज, वैसे तो ये बल्क लिक्विड है, बट बल्क को भी हम माइक्रोस्कोप लेवल पे बोल सकते हैं। ये टॉप लेयर है, उसके नीचे एक लेयर होगी, उसके नीचे और लास्ट में एक जो लेयर होती है वो जो ग्राउंड से एकदम अटैच रहेगी, राइट। जैसे मान लो कि ओशन है तो ओशन का बेड जो होगा, दिस इज द बेड ऑफ द ओशन, वहां पे एक लास्ट लेयर होगी। यू गाइस एग्री? अभी व्हेन दीज लेयर्स आर मूविंग, right, when the fluid is in motion, agar if the velocity is same of all these layers are moving with the same velocity, there is no relative motion. But the fact is, अगर आप ध्यान से देखो तो जो टॉप लेयर है ये मैक्सिमम वेलोसिटी से चलती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रेजिस्ट करने वाला नहीं है इसको, ठीक है। जो बॉटम लेयर है इसकी वेलोसिटी 0 होती है हमेशा। क्यों? क्योंकि वो सी बेड से अटैच है। तो सी बेड से अटैच है तो इसका मतलब इट विल रादर नॉट मूव, क्योंकि अगर वो मूव करेगी तो साथ में उसको सी बेड को साथ में लेके जाना होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। सो द बॉटम लेयर, आपको याद रखना कि बॉटम लेयर इज ऑलवेज 0 वेलोसिटी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वेलोसिटी इंक्रीजेस एज यू मूव टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर। दिस इज अ कॉमन कॉन्सेप्ट। आपने कभी नोटिस भी किया हो, अगर आपने सी में कभी अंदर गए हो या आप जाओ तो देखना, ऊपर आपको बहुत सारा टर्बुलेंस दिखता है, सो मेनी पानी का लहरें एंड ऑल दैट, राइट। बट वंस यू गो लिटिल डीप, आप अगर 10 से 20 फीट भी चले जाओगे, यू विल सी कंप्लीट कामनेस, एज इफ द वाटर इज टोटली हेल्ड इन अ वेसल।
वहां पे रह के अभी आपको ऊपर का इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते हो कि इतना ज्यादा टर्बुलेंस है ऊपर, राइट? तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो पानी में या किसी भी लिक्विड में, यू टेंड टू गेट वाटर और द लिक्विड टेंड्स टू गेट मोर कामर एंड कामर। यहां पे आप नीचे एकदम आ जाओगे तो जीरो स्पीड होगी, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे बढ़ेगी। सो कहने की बात ये हुई डियर कि देयर इज ऑलवेज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, and whenever there is a relative motion, there will be one is trying to run faster, one is trying to run slower, so there will be a friction, and that friction, my dear friend, is called viscosity. उसको एक नया नाम दे दिया है viscosity, ठीक है? सो यही डेफिनेशन हमको viscosity की यहां पे देखने को मिलेगी आपको, ठीक है? Viscosity is what? It is the property of a fluid by the virtue of which an internal force of friction comes into place. So this is again a force of friction because there is a relative motion between the layers of fluid. When fluid is in motion, ठीक है, so it is only coming into picture when fluid is in motion. So एक calm lake में जिसमें पानी मूव ही नहीं कर रहा या हाइड्रोस्टैटिक केस में हम विस्कोसिटी की बात ही नहीं करेंगे, we will not even think about viscosity. ये बात याद रखिए कॉन्सेप्ट कि नॉर्मल स्टैटिक लिक्विड में देयर इज नो विस्कोसिटी कमिंग इनटू प्ले। नाउ दिस विस्कोसिटी व्हाट इट डज, इट ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है? इसको विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं, किसी बुक में आपको इसको विस्कस ड्रैग, बिकॉज़ ड्रैग इज समथिंग व्हिच होल्ड्स यू बैक, राइट? सो दिस इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग एज वेल। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लिक्विड्स जैसे वाटर, अल्कोहल, दे आर लेस विस्कस, वाटर इज वेरी लेस विस्कस। लिक्विड्स लाइक हनी, ब्लड, ग्लिसरीन, दे आर हाईली विस्कस, ठीक है? सो उनका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। अभी नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इट इज। अगेन फिजिक्स में आप जानते हो हमेशा होता है कि आप पहले अंडरस्टैंड करते हो, फिर उसके साथ में एक गिफ्ट और लगा होता है, वो नई क्वांटिटी का। तो अब इसको हमको डिफाइन करें। जैसे फ्रिक्शन में कैसा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था म्यू, coefficient of friction mu, right, which decides your amount of friction. So ये coefficient of viscosity, which is property of a fluid, right, it's a property of a fluid, ये हम define करने की कोशिश कर रहे हैं। We are trying to define कि कौन कितना ज्यादा viscous है, उसको let's define। तो हमने एक term coin किया coefficient of viscosity, इसको we write n with a one side tail, it is called eta, again a Greek letter। मैंने बोला था आप लोग की Greek अच्छी हो जाएगी 12 पास करते करते। दिस इज अनदर एनहांसमेंट इन योर vocab, सॉरी मे बी लेटर्स, ग्रीक लेटर्स। ओके, सो यहां पे हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन अ लिक्विड का सैंपल, ठीक है, इट इज इन मोशन। द बॉटम लेयर विच इज attached to a fixed surface, because we know liquid is always inside a container, or it may be how the ocean is itself is a container, right? So it remains in that container, so उसी में movement हो रहा है। So the last surface is fixed surface and ऊपर surface is free layer, right? This is a surface layer, it's called free layer. यहाँ पे velocity maximum है, यहाँ पे velocity zero, जैसे मैंने बताया, because this layer cannot move because this is attached to the fixed surface, right? Now as we move along, यहाँ पे zero है, यहाँ पे कुछ और बढ़ेगी, यहाँ बढ़ते बढ़ते till you reach the last layer में it will be maximum velocity. So now we are defining a new term, velocity gradient. Velocity gradient क्या है? velocity gradient जरा ध्यान समझना। Let's say this is one layer where velocity is some v, some random value v. As you move little bit up, मतलब a very very small displacement, delta x is very very small, you reach the next layer, ठीक है? इमेजिन कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है, यू जस्ट वेंट फ्रॉम वन लेयर टू द अबव लेयर, राइट, अबव दिस लेयर। एज वी नो कि वेलोसिटी विल इंक्रीज व्हेन यू आर मूविंग, राइट, सो वी आर कॉलिंग दिस लेयर वेलोसिटी एज v प्लस डेल्टा v और v प्लस dv, ठीक है? सो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी upon the change in distance or the displacement you did between two layers. The distance between two layers, delta x, delta.
ग्रेडियंस एक नॉर्मल टर्म है, राइट? मतलब ऐसा नहीं बोलते कि ग्रेडियंस दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, कहीं पे टेम्परेचर ग्रेडियंस हो सकता है। टेम्परेचर ग्रेडियंस क्या होगा कि अगर आप एक बॉडी में मूव कर रहे हो, आप इस प्लेस से इस प्लेस पे आए तो टेम्परेचर यहां से बढ़ के इतना हो गया, तो वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अपॉन योर डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट, ठीक है ना? तो ऐसी वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हुआ कि आपको डेल्टा वी वेलोसिटी इंक्रीज मिला कितने जाने पे? डेल्टा एक्स जाने पे। सो डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, इसको हम लोग अगर ये डेल्टा एक्स को बहुत बहुत लिमिट कर लें जीरो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, सो वी कैन राइट दिस एज dv ओवर dx एज well. So dv over dx is a velocity gradients. Now viscous force, because ultimately it's what? It's a friction force. So friction force this is all experimental. Friction force happens to be proportional to the area of contact. मतलब इन layers के बीच में कितना area of contact है तो उस पर डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल है। एंड दिस इज रादर इंट्यूटिव, फ्रिक्शन फोर्स विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब अगर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है, मतलब यहां से यहां गए वेलोसिटी में काफी डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब देयर इज लॉट मोर रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स, ऑब्वियसली इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट्स। सो दिस फोर्स, विस्कस फोर्स, इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लेयर्स एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। इन दोनों को कंबाइन करोगे आप तो फोर्स वुड बी प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx। नाउ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जाएगा और उसके जगह हमारा कोएफिशिएंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जाएगा, वी विल सी f इज इक्वल टू eta which is coefficient of viscosity area dv by dx and with a minus sign। माइनस साइन बिकॉज ये मुझे मालूम है कि if velocity the liquid is flowing like this, right, liquid is flowing like this, the viscous drag would be in the opposite direction. So this minus sign rather have no meaning, it just says it is opposite to the direction of motion of the fluid, जैसे फ्रिक्शन है बिल्कुल सेम, कोई इसमें कुछ चीज नहीं। आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा हुआ है एरर्स एंड डायमेंशंस का? अगर देखा हुआ है तो यू कैन रिलेट विद दिस, वी कैन रिलेट विद दिस डायमेंशंस वाला पार्ट। अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है डायमेंशन का, राइट? कोई डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी निकालने के लिए आता है, दिस इज ml-1 t-1, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है? मैं अभी यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जिन्होंने वीडियो देखा नहीं हुआ उनको कंफ्यूजन हो जाएगा, बट जिन्होंने देखा हुआ है वो यहाँ इस फॉर्मूले से फोर्स का डायमेंशन लिखो, एरिया का, अभी dv by dx क्या हो जाएगा? dv मतलब वेलोसिटी का चेंज, मतलब ये मीटर पर सेकेंड, dx मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ये लेंथ हो जाएगा। तो इन सबकी डायमेंशंस आप प्लग इन करोगे, जस्ट लीव दिस गाय अपार्ट, यू विल गेट द डायमेंशंस ऑफ eta व्हिच इज ml-1 t-1, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर आप न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे तो ये चीज आती है केजी मीटर -1 सेकेंड -1, ठीक है? तो ये हमें याद ही रखना है, ठीक है? ये हमें याद ही रखना है। हमें याद क्या रखना है? इसकी नॉर्मल यूनिट होती है पॉइजले, दिस इज द स्पेलिंग, ठीक है? तो ये जो चीज लिखी हुई है हमने पूरी, न्यूटन सेकेंड मीटर -2 या फिर केजी m-1s-1, इसको हम बोलते हैं पॉइजले, ठीक है? और पॉइजले को हम डेकापॉइज भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीजीएस में, मतलब सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड जो यूनिट सिस्टम है, उसमें पॉइजले को बोलते हैं पॉइज, और 1 पॉइजले मतलब एसआई यूनिट वाला, मतलब याद रखो कि पॉइजले मतलब एसआई यूनिट जो हमारा न्यूटन वाला है, ठीक है? 1 पॉइजले विल बी 10 पॉइज, मतलब दोनों सेम यूनिट है, ये सीजीएस में है, ठीक है? और ये दोनों एसआई यूनिट में। कंफ्यूजन होता है इसमें भी, नाम थोड़े से बड़े अजीब से हैं, तो आपको याद रखना है पॉइजले इज माय मेन, ठीक है, जो एसआई यूनिट है। अगर हम पॉइज में लिखा है, पॉइज मतलब वो हमको सीजीएस यूनिट में दे रहा है, एंड 1 पॉइजले वुड बी 10 पॉइज। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे 1 पॉइजले इज 10 पॉइज, या फिर 1 पॉइजले को हम 1 डेका पॉइज भी बोलते हैं, बिकॉज डेका मीन्स 10 पॉइज ना, इसलिए ऐसे 1 डेका पॉइज। तो कैसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में, वो कंफ्यूज नहीं होना है।
डेकापॉइज बोले या पॉइजले बोले, सब कुछ हैप्पी है, नो इश्यूज। जब वो पॉइज में बोलेगा, ओ पॉइज बोल रहा है, इसका मतलब दिस गाय इज गिविंग मी इन CGS यूनिट, सो जस्ट डिवाइड दैट वैल्यू बाय 10 टू कम इनटू SI यूनिट्स, राइट? तो याद रखना है अपने को। So this is the coefficient of viscosity का कहानी। अब इसका एक स्पेशल केस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमको अभी करना है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के पहले कहानी समझते हैं, फिर ये तो सब थ्योरी है। बात क्या करनी है हमको, वो थोड़ा सा देखो। मान लो आपके पास एक लिक्विड का कुछ बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है, मतलब रिजर्वॉयर मतलब कि इट्स अ रिवर और ओशन और व्हाटएवर, राइट? मतलब ऐसा नहीं कि घर में पानी में बाल्टी में भरा हुआ पानी, वो नहीं, ऐसा मतलब इट्स लाइक ए रिजर्वॉयर ऑफ वाटर, ठीक है? यहां पे आप एक हैवी स्फेरिकल बॉल आगे ड्रॉप कर दो, जस्ट ड्रॉप इट, इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। इट्स ए हैवी बॉल, सॉलिड बॉल, इमेजिन करो आयरन का, ऐसे नहीं, तो आप आके पानी में इसको से डालोगे तो क्या होगा, जुप करके अंदर जाएगी, राइट? तो जैसे जैसे ये आगे जाएगी, थोड़ी देर में यहां पे आएगी। कैन यू गाइज इमेजिन कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट्स स्पीड विल इंक्रीज। पहले आपने जस्ट ड्रॉप करी थी, जीरो वेलोसिटी, जैसे जैसे अंदर जाएगी इस वेलोसिटी विल इंक्रीज। गाइज एक साइंटिस्ट था स्टोक, उसने बोला कि जैसे जैसे ये अंदर जाएगी इसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने की वजह से इस पे विस्कस ड्रैग जो लग रहा होगा लिक्विड का, वो भी बढ़ता जाएगा। मतलब शुरू में तो सब कुछ हैप्पी है, आपने डाला, ये ज़ूम करके नीचे आना शुरू हुई, बट ये लिक्विड धीरे धीरे इस पे ड्रैग लगाएगा। जैसे जैसे तेज भागेगा ये और ड्रैग लगाएगा, इसकी स्पीड और बढ़ेगी और ड्रैग, एक लिमिट पे आके ड्रैग फोर्स और इसका जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये हैप्पीली एवर आफ्टर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, एंड दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है? सो स्टोक ने इसका एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला दिया जिसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका ओनली डेरिवेशन डायमेंशनल एनालिसिस से होता है, अदरवाइज जो उसने फॉर्मूला दिया इट इज अ प्योरली एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला। आप जानते हो ये साइंटिस्ट लोग, अगेन दीज गाइज आर प्लेइंग विथ थिंग्स, तो ऐसे खेलते खेलते उसने एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला अपने को दे दिया, ठीक है? उसी को हम स्टोक्स लॉ से जानते हैं। उसने क्या बोला, व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ फ्लूइड, minded it is fluid, it is not liquid only, when a body falls through a fluid, a relative motion between the layers of fluid is set, obviously बात है, there will be some, as it moves it will try to drag the layers of liquid along with it, right? So it drag करेगी इसको, उसकी वजह से as a result the body experiences a retarding drag force, right? Because liquid will try to drag it। मत जैसे कि आप हवा में साइकिल चला रहे हो and wind is very very, now the speed of wind is very very high, so you'll feel the drag ना, आपको drag feel होगा कि आपको someone is trying to stop you, ठीक है? आप रुक जाओ तब शायद आपको हवा उतनी फील ना हो, you will not feel that wind that much when you stop it, when you start to move with a high speed you will feel the drag। so वही चीज यहाँ पे, so as it moves it feels a backward drag, उसको बोलते हैं drag force। जैसे कि falling of raindrop जब fall करते हैं तो उस पर भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। रेन ड्रॉप स्फेरिकल होते हैं, when they start falling they start initially their speed increases because of gravity, रेन ड्रॉप का स्पीड इंक्रीज करता है, बट एयर का ड्रैग बढ़ता है, जैसे स्पीड बढ़ता है एयर का ड्रैग बढ़ता है, और एक टाइम पे आके रेन ड्रॉप्स गेट अ कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। स्विंगिंग ऑफ ए पेंडुलम, आप एक एयर में एक पेंडुलम को स्विंग कर दो, उस पर भी ड्रैग लगेगा, राइट? तो वही चीज है, एग्जाम्पल है, ठीक है? अब इसका मैनिफेस्टेशन उसने फॉर्मूले में कैसे किया, उसने बोला बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता बॉस, बट अगर आप एक स्फेरिकल बॉडी को सॉलिड ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड में या फ्लूइड में ड्रॉप करोगे तब विस्कस ड्रैग फोर्स क्या होगा, उसका फॉर्मूला उसने एक्सपेरिमेंटल दिया। इसी फॉर्मूले का मैं बता रहा था कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, एंड इसी फॉर्मूले को ही बोलते हैं स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ का एग्जाम में लिखने को आएगा, आपको ये भी लिखना है और ये भी लिखना है यहाँ पर, दिस इज द एक्चुअल स्टोक्स लॉ। उसने क्या बोला, एक स्फेरिकल बॉडी, इसका रेडियस r है, इफ इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v,
in a liquid or a fluid whose coefficient of friction, coefficient of viscosity is eta. So the viscous force on this at that moment when the velocity is v would be given by 6 pi eta r v. 6 pi eta r v formula he gave. The viscous drag force. ठीक है, अब इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, ये तो कांस्टेंट है, 6 pi is also constant, eta is the property of the fluid constant, r is the radius of the object, sphere का radius तो constant रहेगा, this is not constant. So initially when you drop the object, velocity would be rather 0, so there would be no viscous drag. But as after few मतलब कहते हैं ना fraction of second it will attain the velocity, जैसे ही वो attain करेगा ये viscous force बढ़ता जाएगा. और ये वेरिएबल फोर्स है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स बिकॉज इट इज एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो एज द ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ फास्टर वेलोसिटी दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट. सो इसीलिए बिकॉज ये वेरिएबल फोर्स है वी हैव टू लर्न अ कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी. की बात हम तब करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड एंड फ्लूइड हैज सफिशिएंट डेप्थ. We are not talking about terminal velocity when you are dropping something in a bucket of water. We are talking something of this terminal velocity means you are dropping something in a lake or a river or an ocean. ठीक है, तो क्या होती है terminal velocity? It is the highest speed attained by the body when falling through a fluid. It is the highest speed attained by a body when it is falling through a fluid. इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो डेरिवेशन अगर अंडरस्टैंड करोगे तो आप इसके क्वेश्चंस भी कर पाओगे, है ना. तो अब इसको डिराइव करना है हमको, देखते हैं इसको. ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन कर रहे हैं हम कि व्हेन अ सॉलिड इज इट्स अबाउट स्फीयर. हाँ, ये जो लॉ है इट्स नॉट फॉर एनी ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट ट्रू फॉर क्यूब और समथिंग. आप क्यूब के लिए रेडियस क्या डालोगे ना, तो इट हैज टू बी स्फेरिकल. सो सॉलिड बोल रहे हैं लेकिन इट इज सॉलिड स्फीयर. व्हेन अ सॉलिड स्फीयर इज ड्रॉप्ड इन अ फ्लूइड, कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे? पहला, इसका वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, यू गाइस एग्री. दूसरा, विस्कस फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स बिकॉज इट इज कमिंग डाउन, तो विस्कस ड्रैग वुड बी अपवर्ड्स. तीसरा, फोर्स ऑफ बॉयंसी FB also upwards, है ना. इनिशियली वेलोसिटी एंड हेंस विस्कस फोर्स आर 0. आपने ड्रॉप किया इसको, देयर इज नो वेलोसिटी, सो विस्कस फोर्स नहीं है. तो इसका मतलब जो नेट फोर्स उस पर होगा वो क्या बोल सकता हूं, वेट माइनस बॉयंसी होगा. W इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड B इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी. ये आपको समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल. वेट नीचे लग रहा है, ऊपर बॉयलेंट फोर्स लग रहा है, तो उस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो W माइनस B होगा गाइस, राइट. बिकॉज ऑफ दिस, अभी नेट फोर्स है डाउनवर्ड्स, सो उसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीजेस. इस नेट फोर्स की वजह से जो कि डाउनवर्ड्स है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, विस्कस फोर्स इट विल टेक बर्थ, प्रकट हो जाएगा ये और शुरू हो जाएगा लगना और बढ़ता भी जाएगा. ठीक है, कब तक बढ़ेगा? एक टाइम ऐसा आएगा विस्कस फोर्स बिकम्स इक्वल टू W माइनस B. देखो यहां पे हम ये बोल रहे हैं भाई कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, इस पे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बना देना यार, सीरीज बार. यस, इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं. एक तो इसका वेट, दूसरा फोर्स ऑफ बॉयंसी और तीसरा इसको बोल देते हैं चलो F, विस्कस फोर्स. ये 3 फोर्स लग रहे हैं. दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स. एज द ऑब्जेक्ट इज गेनिंग मोर एंड मोर वेलोसिटी इट इज इंक्रीजिंग. सो इनिशियली तो ये 0 था, तब नेट फोर्स था हमारा W माइनस B, राइट. फिर जैसे जैसे ये एक्सेलरेट करेगा ये बढ़ता जाएगा. तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि W माइनस B, जो ये डाउनवर्ड फोर्स नेट हमारा है, W माइनस B नेट डाउनवर्ड फोर्स, it will be equal to this viscous force, right. कभी तो ऐसा होना ही है यार, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है ना ये,
कोई एंड ही नहीं उसका। तो हम उस मोमेंट की बात कर रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी में कि जब ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी उसके बाद इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो गए। इक्वल हो गए मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब इट विल नाउ गो विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। स्टॉप नहीं करेगा गाइस, उस टाइम तक मतलब वेलोसिटी अटेन कर ली है, इट विल नॉट स्टॉप, इट विल जस्ट कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट जब ये अचीव हुआ, राइट। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो F को लिखा है हमने 6 पाई ईटा आर बी नॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला। वी नॉट क्यों कर दिया, वी नॉट को हम बोल रहे हैं इट इज द टर्मिनल स्पीड, कि जिस मोमेंट पे ये हो रहा है, दैट मोमेंट जब ये मैच कर रहा है उस टाइम पे जो फोर्स होगा ये होगा। अच्छा वेट m इंटू जी होता है, वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है m इंटू जी। अब m कैसे लिखेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये स्फीयर की डेंसिटी है, it is the density of the solid, the density of the sphere. So volume into density, this is mass, and multiplied by g, तो m into g is the weight, normal weight किसी भी ऑब्जेक्ट का। Force और buoyancy, अब हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट is completely immersed in the liquid, so the volume of the liquid replaced by the body is same as its own volume, so ये तो 4/3 pi r cube हो गया, right? Now यहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगा, बॉयवेंट फोर्स में क्या आता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आता है गाइस। सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हमने सिग्मा बोल दिया है, जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि हम रो में कंफ्यूज ना हो। ये जब रो बोल रहे हैं तो ये डेंसिटी ऑफ स्फीयर की है, सॉलिड की, और सिग्मा जो बोल रहे हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। आगे बात समझ में, तो सेम चीज इंटू जी, दिस इज वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी, दिस इज द बॉयवेंट फोर्स। तो ये तीनों फोर्स हैं। अब हम करना क्या है हमको, कि जिस मोमेंट पे ये हो रहा है, मतलब नेट ड्रैग फोर्स जो है इसका वेट माइनस W माइनस बी के बराबर हो रहा है। ये अपवर्ड फोर्स है, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स है, इसको इक्वल कर दिया हमने। इसको इक्वल करोगे गाइस, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, सिर्फ पाई वाई सब कॉमन लेके, पाई तो वैसे कैंसिल हो जाएगा पूरी जगह से, तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2r² रो माइनस सिग्मा टाइम्स जी अपॉन 9 ईटा। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि ये इस पे स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं, तो डिराइव नहीं करोगे आप एग्जाम में, ठीक है। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी का स्पीड, मतलब 2r² रो मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड, जो कि जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड जिसके अंदर वो फॉल कर रहा है। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9 ईटा, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो इससे हम रेन ड्रॉप्स की भी टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अच्छा इस फॉर्मूला में एक चीज ध्यान दो, कहीं भी इस फॉर्मूले में आपको डेप्थ दिख रहा है, मतलब कि कितना डेप्थ पे फॉल किया है, कुछ नहीं, राइट। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि कितना हाइट वो गिर चुका है, राइट। सो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज रेडियस, द डेंसिटी ऑफ those two fluid and the solid, and the coefficient of viscosity of the fluid. It does not depend on कि from what height the object has fallen through, which is very counterintuitive। हमें लगता है ना कि height should play a role, because कितने ऊपर से गिरा है, velocity of terminal velocity should भी होनी चाहिए, वैसे ऐसा नहीं होता। ऐसे जब पैराशूट भी नीचे गिरता है, so पैराशूट की dimensions decide करती हैं कि उसका आपका terminal velocity क्या होगा। आप किस हाइट से फॉल कर रहे हो, बिकॉज यू आर यूजिंग पैराशूट, मतलब आप बहुत ऊपर से गिर रहे हो, है ना। यहां से नीचे गिरने के लिए मैं पैराशूट नहीं यूज करूंगा, स्टेयर्स ले लूंगा, है ना। तो इसलिए सो यहाँ पे हाइट का इंपॉर्टेंस नहीं है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक। तो टेक अवे क्या है, टेक अवे डेरिवेशन आपके स्कूल एग्जाम के लिए, ठीक है, और थॉट दैट इन्वॉल्विंग, और टेक अवे ये आपका फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस से करते हैं, देखो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। बस ये लास्ट चीज है आज की। लेट्स कम बैक टू चेक पॉइंट्स। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने बात बोली आपको अभी। फर्स्ट क्वेश्चन, चेक पॉइंट 3, पेज 403। गाइस ये नोट्स में आपको ट्रांसफर कर चुका हूं टेलीग्राम पे ना।
चेक पॉइंट 3 पेज 403, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्या आंसर होगा उसको बताओ। ऑप्शन ए, इट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एच, बिकॉज रेन ड्रॉप को हम स्फेरिकल ले सकते हैं, राइट, और फ्लूइड मतलब एयर में फॉल कर रही है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या आंसर लिखोगे आप लोग। सरफेस टेंशन आपको नहीं पता तो उसको भूल जाओ, इट विल बी सी, राइट, इट इज लिमिटेड बाय द, क्योंकि अभी फॉर्मूले में देखा हमने इटा डिनोमिनेटर में था, यहां पे देखो ये है, जितना ये ज्यादा होगा ये इतना कम हो जाएगा, इट इज लिमिटेड बाय दिस कोफिशिएंट ऑफ, राइट, विस्कस, तो मतलब विस्कस ड्रैग की वजह से ये लिमिटेड है। और कोई ढंग का क्वेश्चन है कि थर्ड भी आप लोग कर सकते हो, कैलकुलेशन क्वेश्चन है, बट दिस इज रादर इजी। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, आई विल लेट यू गो। हमें अब आप लोग चेक पॉइंट 3 कर सकते हो, यू कैन डू चेक पॉइंट 3 ऑल्सो। चेक पॉइंट 1 हमने ऑलमोस्ट यहीं पे कर लिया था, चेक पॉइंट 2, चेक पॉइंट 3 आप लोग कर सकते हो, प्लस वार्म अप का अब आप लोग यहाँ वाला तक का पार्ट, जो मतलब विस्कोसिटी वाला पार्ट आप कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है सरफेस टेंशन, ये थोड़ा हाई वेटेज टॉपिक है गाइस, तो इसको थोड़ा 3 आवर्स का क्लास हमारा रहेगा उस दिन, ठीक है। ये हम लोग, यस, यू कैन स्टॉप इट, थैंक यू।